मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, and the center of mass is changing its position with time. It means that the center of mass is in motion, and we have calculated the velocity of center of mass. So that is what we have discussed, that we have calculated the velocity of center of mass. ठीक है, velocity of center of mass means that the velocity of the system of particles, because center of mass is representing the system actually. ठीक है, center of mass is actually representing the system. So the velocity of center of mass means the velocity of system of particles. ठीक है, and then we have discussed about the momentum of the center of mass, या फिर आप कह सकते हैं momentum of system of particles. Okay, and result is that the total momentum of the system of particle, the total momentum of system of particle is the sum of the individual momentas of all the particles. ठीक है, जो टोटल मोमेंटम होगा और हर एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है, तो टोटल पार्टिकल और टोटल मोमेंटम जो होगा या सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होता है? हर एक पार्टिकल के मोमेंटम के सम के बराबर होता है. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? वेलोसिटी. वी हैव the situation is that the system is moving with velocity v, cm, that is velocity of center of mass. न्यूमेरिकल्स आएंगे आपकी वेलोसिटी पे भी उसी तरह जैसे आपकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे न्यूमेरिकल्स आए थे, और मैंने आपको एक कल सेंड भी किया था. उसमें आपने अगर देखा हो, एनालाइज किया हो, तो आपको पता लगेगा कि सेंटर ऑफ मास क्या, आप कह सकते हैं कि क्या चीज़ ये होती है. ठीक है, अभी जो है आज जो हम करने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, सिचुएशन क्या बन चुकी है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन कर रहा है. सेंटर ऑफ मास मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी व्हाट? vcm. ठीक है, एंड नाउ सपोज दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. इट मींस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. Okay, velocity changing with time, it means rate of change in velocity means acceleration is produced. And acceleration produced कहाँ से होता है? If there is acceleration, then there must be some force, that is Newton's second law. Okay, mathematical form of Newton's second law is that कि if there is acceleration of a particle, it means some force will be involved in this. Okay, so if suppose that the center of mass has a velocity which is changing continuously with time, it means that the system of particles or the center of mass is actually accelerated है वो, that is accelerated. And acceleration is only produced when some force is involved, some external force is there, that is Newton's second law. Okay, so acceleration है, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ सम फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड देन द फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. Okay, ACM, that is acceleration of center of mass. Okay, acceleration is what? Rate of change in velocity with time. Rate of change in velocity with time, it means it is dvcm. It is a vector quantity. Okay, dvcm upon dt. ठीक है, ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है. ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बेटा. सो
वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है, बेसिक चीज है समझिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा 7th-8th क्लास में कहा जाता है कि फोर्स व्हाट ए फोर्स कैन डू, फोर्स इज एबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से क्या किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या तो इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा, दैट इज व्हाट फोर्स इज देयर। So if there is an increase in speed or decrease in speed, then it means there is a change in speed, and if there is a change in speed, it means that there is a change in velocity, and then the acceleration is there. So if force is involved, force अगर आपने लगाई हुई है, then it will result in what, acceleration. It will either increase the speed or will decrease the speed. So यहाँ मैं acceleration को बेटा कभी भी ये नहीं लिख सकता ACM is equals to VCM upon T, नहीं, गलत है। ACM is equals to dVCM upon dt. It means velocity is changing with respect to time. Velocity is changing with respect to time, and in doing so there will be some force involved. Okay. चले VCM आपने पता कर लिया था सेंटर ऑफ मास का, तो VCM की वैल्यू कितना देते हैं, तो d/dt VCM क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 कहां तक, mn/vn तक, and that is divided by m1 प्लस m2 प्लस कहां तक, mn तक, ठीक है। वेयर दैट इज एक्चुअली द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज एक्चुअली द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कितना मास आप मानने वाले हैं, पूरे सिस्टम का मास आपने माना हुआ सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो जो आपके सिस्टम का मास है वही मास जो है दैट इज द मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का भी उतना ही मास होता है। चलिए इसे अलग अलग आप कर दीजिए, क्योंकि बेटा डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सभी पे। सो ACM विल बी इक्वल्स टू d/dt m1v1 वेक्टर। अब m1 क्या है, m1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज नहीं होने वाला बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। एप्लीकेशन फोर्स अगर आप लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो नहीं होने वाला, ठीक है। सो मास चेंज नहीं होगा, इट मींस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो बाहर ले लीजिए। सो m1 dv1 upon dt plus similarly dv2 upon dt कहां तक, mn बाहर, dvn by dt, and that will be divided by the m1 plus m2 कहां तक, mn तक, ठीक है। ये चीजें हो रही है। अब m1 dv1 अपॉन dt ये बता क्या रही है, ये बता रही है बेटा कि अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाई है, तो सेंटर ऑफ मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने सिस्टम पे फोर्स लगाई है तो हर एक पार्टिकल पे भी फोर्स लगाई है, और अगर हर एक पार्टिकल पे आपने फोर्स लगाई है तो हर एक पार्टिकल का क्या होगा, हर एक पार्टिकल की स्पीड में या वेलोसिटी में क्या प्रोड्यूस होगा, चेंज। तो हर एक पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी में अगर चेंज होगा, इट मींस क्या प्रोड्यूस होगा, हर एक पार्टिकल के साथ प्रोड्यूस होगा बेटा एक्सेलरेशन। ओके, सो अगर आपने क्या किया है, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाई है,
तो इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास किसे रिप्रेजेंट करता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। तो सेंटर ऑफ फोर्स पे, सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाने का मतलब आपने फोर्स लगाई है कहाँ पे, सिस्टम पे, और सिस्टम में कौन है, पार्टिकल्स बेटा। तो अगर आपने फोर्स लगाई है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, तो इसका मतलब क्या है, हर एक पार्टिकल पे भी फोर्स लगी है। और फोर्स क्या कर सकते हैं बेटा, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज, और डिक्रीज और इंक्रीज क्या करता है, एक्सेलरेशन। तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है, लेकिन होगा क्या, हर एक पार्टिकल का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट इज m1a1. okay, that is acceleration of first particle, that is a1, okay, plus m2a2 plus mnan, okay, and that will be divided by m1 plus m2 mn. So that is actually the acceleration of center of mass. ठीक है, it means if a force is applied on the system of particle, then a force is applied on center of mass. And अगर center of mass पे force लगी है, then an acceleration will be produced there. ठीक है, which will represent the acceleration of the center of mass, means the acceleration of system of particles, and the value of that acceleration comes out to be m1a1 vector plus m2a2 vector plus 10. ठीक है, so that is the acceleration. Okay, so we have discussed acceleration. अब आगे क्या करना है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ सम फोर्स इज इन्वॉल्व देयर। तो फोर्स निकाल लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। सो फोर्स क्या होगी, किसी भी बस सेंटर ऑफ मास पे, सपोज करिए सेंटर ऑफ मास है, मतलब इट इज ए पॉइंट जिसका मास कितना है m, इसका एक्सेलरेशन अगर आपने फोर्स लगाई है सपोज करिए इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन हो चुका है, और एक्सेलरेशन कितना हुआ है, acm, ठीक है। सो अब कितनी फोर्स लगी हुई है इस पे F, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, m, क्योंकि F is equals to m है, so mass of the center of mass, and acceleration is the acceleration of center of mass because of that application of force. Okay, so F is equals to macm. अब acm की वैल्यू पुट कर दीजिए, और सॉरी यहां वैल्यू पुट करिए, दैट इज एक्चुअली द टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस ये क्या है, टोटल मास है। सो इसकी जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज m, और m को आप लेके जाइए इधर। सो F इज इक्वल्स टू ma इज इक्वल्स टू व्हाट, m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर mnan वेक्टर, ठीक है। सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन the center of mass or the center of or the system of particles, ठीक है। पहले पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी है, इतनी, दूसरे पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगी है, इतनी, तीसरे पे कितनी नहीं दिखा हुआ है, nth पे कितनी लगी है, इतनी, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल पे इंडिविजुअल फोर्स लगी हुई है। लेट अस से दैट दिस इज F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन। सो द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल or the center of mass is equals to actually F1 plus F2 plus F3 plus Fn, ठीक है, प्लस Fn। तो ये चीजें हम जो है करने वाले थे। अभी मैंने क्या कर दिया है,
मैंने ये बता दिया है कि बेटा कितनी फोर्स लगी हुई है, क्या है दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर ऑन सेंटर ऑफ मास विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। ठीक है, विल बी द सम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। ठीक है, यहां तक हमने जो आपका सेकंड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो किया हुआ है बेटा कवर। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन था वो हमने अभी तक कवर किया है। अब वहां मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद क्या आया था आपका, रोटेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आज हम बात करने वाले हैं कि आगे इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या। वन डायरेक्शन को हो गया है, बहुत सिंपल है तो कर लिया है। ठीक है, अभी मैं पढ़ने वाला हूं रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है ट्रांसलेशनल, पढ़ा है केवल ट्रांसलेशनल या रेक्टिलिनियर मोशन हमने पढ़ा है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो बहुत सी सिंपल चीज थी, वो हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, रोटेशनल मोशन की। ठीक है, पहले उससे बात करने से पहले बात करते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड ये जैसे ये रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी, मैं रिजिड नहीं हूं। ठीक है, ये रिजिड है। ओके, सो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज रिजिड बॉडी। ठीक है, तो डेफिनेशन इज two particles cannot change their position with respect to each other। अगर आपकी बॉडी ऐसी है कि उसमें जो पार्टिकल्स है, जैसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं एक पार्टिकल मान लेता हूँ पार्टिकल नंबर 1, यहाँ पे मैं दूसरा पार्टिकल मान लेता हूँ पार्टिकल नंबर 2। सो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें ये दो पार्टिकल्स जो है, दीज टू पार्टिकल्स, द टू पार्टिकल्स या द nth पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल आप मान सकते हैं, तो कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इट मींस देयर पोजीशन आर फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है बेटा रिजिड बॉडी। ठीक है, ऐसी बॉडी को बोला जाएगा रिजिड बॉडी। ओके, सो इफ टू पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ऐसी बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, फोर्स लगाइए कुछ ही करिए, चेंज नहीं होगी। अब टूट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी। दूसरा होता है नॉन रिजिड। अब नॉन रिजिड क्या होता है, जिसमें पोजीशन को इंटरचेंज किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए ये है और ये है, ये यहाँ पे पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, तो ये पोजीशन
पहले यहाँ था इन दोनों के बीच का गैप, अब इतना है, अब इतना है, सो दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। और ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे? नॉन रिजिड। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द टू पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉट फिक्स्ड, so such a body is known as non-rigid body. ओके, अभी रिजिड बॉडी में किस किस टाइप के मोशन हो सकते हैं और कैसे कैसे मोशन हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया है वन डायरेक्शन वाला, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरे इसमें मोशन क्या हो सकता है? देखिए, रिजिड बॉडी ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे मोशन हो सकता है, मोशन हो रहा है, ऐसे मोशन हो सकता है। सो रिजिड बॉडी में देखिए पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर रहे। ये पार्टिकल इससे जितना दूर है, कैसा भी मोशन होता रहे, ये इससे इतना ही दूर रहने वाला है। ऐसे करिए, ऐसे कर, किसी भी तरह का मोशन। और ये मोशन जो है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, दैट विल बी रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें आपकी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय।